Assalamu alaikum and welcome to mathematics class for standard 5th, chapter 12, smart charts recapitulation video. Students, this chapter is there for your term 1 examination. So let's go through the whole chapter with a short recap of some of the important questions. Students, whole chapter is actually based on these three kinds of sums which I have taken as a recapitulation video. Students, let's begin. Chichi Meow Meow. This already explained in the videos which were there for smart charts. When I have started with the explanation of this chapter, I begin with this and it is already been taught to you in earlier video. Now, this is the repetition. Chichi Meow Meow is the topic of this smart charts activity. Yamini did a project, Animals and Birds. She asked each child of her class about one favorite animal. Now Yamini is a girl and she has did a project of watching some birds and animals, and then using a telemark she has noted every observation in this chart. She used a telemark to record each answer, and for example if someone said cat, she put one line in front of cats. When someone said cat again, she added a line like this, means 2 cats, and this box means 5 cats. In all, 24 children said cats. So, was their favorite animals, right? Said that cat was their favorite animal. Help Yamini to complete the table. अब स्टूडेंट्स, ये जो टेली मार्क्स हैं हमें इन्हें काउंट करने आना चाहिए. ओके, काउंटिंग के लिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको इस बॉक्स का एग्जांपल लेके समझाऊंगी कि बॉक्स कैसे बनाया जाता है. अगर 1 कहा तो वी आर गोइंग टू पुट 1 हियर. अगर 2 कहा सो वी विल पुट लाइन लाइक दिस. देखिए 1 के लिए 1 लाइन ऐसी है और 2 के लिए कुछ ऐसी. 3 बोला हो तो हम ऐसे ऐसे और ऐसे लाइन बनाएंगे यानी सी, है ना. 4 बोला हो तो पूरा एक बॉक्स कंप्लीट होगा, और 5 कहा हो तो बॉक्स कंप्लीट होने के बीच में एक डायगोनल शेप की इंटरनल लाइन होती है. ओके, सो ये बॉक्स एक कंप्लीट 5 रिप्रेजेंट करता है. सो ये देखिए 5 5 5 5 4 बार 5 है. सो 5 4s आर 20 और ये 1 2 3 4 लाइन यानी 20 plus 4 will give you 24. Now this is 5 10 15 20 25 30 and this 2 lines. So what figure is here? It is 32. These are numbers of dogs. Let's count rabbit. 5 and 10. So what Yamini is going to write here? 10. Then cows. 5, 10, 15, 20 and 2 more. So how many cows? 22. This is 5. And look how many lines here. 1, 2 and 3. So 5 plus 3 gives you 8, right? So here it is 8. 5, 10, 15, 20. How many goats? 20. 5, 10, 15. How many squirrels? 15. So observation done. Now looking toward the observation, we have certain questions here. अब इस टेबल को देखने के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. लुक एट द टेलीमार्क्स. हमने टेलीमार्क्स देख लिए. राइट द नंबर्स ऑफ ईच एनिमल इन द टेबल. हमने वो भी लिख लिया, राइट? Okay, now how many children in all did Yamini talk to? So how many total children were there with whom Yamini has talked? So हमें क्या करना होगा? इन सभी numbers का total करना होगा और वो total यहाँ पे as an answer
लिखना होगा. फाइन. नाउ दिस इज फॉर यू टू बी डन. फाइन. नाउ विच इज द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन दिस टेबल. इन सारे नंबर्स को देखिए, सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा वाला ग्रेटर नंबर कौन है? करेक्ट, 32. ये 32 किस एनिमल के लिए है? डॉग, है ना. सो किन सब मोस्टली उसके जो फ्रेंड्स हैं या पीपल हैं, चिल्ड्रन हैं जिससे उसने बात की है, उन सब को डॉग ज्यादा पसंद है. सो यहां पर आप क्या आंसर लिखेंगे? डॉग. Which pet will you like to have and what will you name it? This is an personal question which you may write according to your wish. आपको कौन सा पेट एनिमल पसंद है और आप उसका क्या नाम रखेंगे and all that. Okay, so let's move on to the next question. Hot and cold. This is another topic, hot and cold. Now this hot and cold is actually dealing with two kinds of month where June and December is there, where June is considered to be as a summer and December is actually the season of winter. So in cities में जो temperature का notification हुआ है वो इस स्मार्ट चार्ट में आपको बताया गया है. Have you seen the weather report on TV in a newspaper? आप अक्सर देखते होंगे कि टीवी पर वेदर रिपोर्ट दिखाई जाती है. These are two bar charts. ये जो हैं इनको बार चार्ट्स कहेंगे. These show the highest temperature in degrees Celsius in 4 cities of 2 different days. The cities are Delhi, Shimla, Bangalore and Jaisalmer. So ये 4 cities के वहां पर जो भी टेम्परेचर नोटिस किया हुआ है जून और दिसंबर में वो यहाँ पर लिख दिया गया है इन बार चार्ट्स में. वो 2 दिन है, एक है 1 जून का दिन और एक है 1 दिसंबर का डे. अब हमें इन बार चार्ट्स को देखते हुए कुछ आंसर करने हैं. Which city is the hottest in 1 जून? देखिए, अगर इस जून में सबसे ज्यादा टेम्परेचर का मतलब होता है सबसे ज्यादा हॉटनेस. ओके, तो ये सभी तो हॉट ही हैं क्योंकि जून में है, तो सभी दिन तो गर्म ही होते हैं, वी फील वेरी हॉट. लेकिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे देखा गया है? जहां पे सबसे ज्यादा नंबर है यानी सबसे ग्रेटर नंबर है और वो है जैसलमेर. सो हम इस क्वेश्चन के आगे आंसर लिख देंगे जैसलमेर. अंडरस्टूड. Now next question, which city is the coldest on 1st December? अब कोल्ड के बारे में पूछा है तो हम लोग को दिसंबर का चार्ट देखना है और सबसे कोल्डेस्ट यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर जिसका होगा वो सबसे कोल्डेस्ट, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा का मतलब होता है हॉटनेस. तो अगर सर्दियों के दिनों में ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा नंबर आपको सबसे ज्यादा ठंडी देगा, नहीं. टेम्परेचर जितना कम होगा ना ठंडी उतनी ज्यादा होती है और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा गर्मी उतनी ज्यादा होती है. तो यहाँ पर आपको लीस्ट नंबर देखना है. अगर आप टेम्परेचर देख रहे हैं तो सबसे कम टेम्परेचर शिमला में नोटिस हुआ है, यानी सबसे ठंडा वाला देश कौन सा होगा? शिमला. अंडरस्टूड. अब बात करते हैं विच सिटी शो द लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द 2 days, 1 जून और 1 दिसंबर. इन 2 दिन में यही 4 सिटीज को लिया गया है. दिल्ली समर में भी नोटिस किया गया, दिल्ली विंटर में भी नोटिस किया गया, उसी तरह शिमला, बैंगलोर और जैसलमेर को गर्मियों में भी नोटिस किया गया टेम्परेचर 1 जून को और ठंडी में 1 दिसंबर को भी नोटिस किया गया. अब इन टेम्परेचर्स में वो सिटी कौन सी है जो सबसे कम डिफरेंस बताती है टेम्परेचर का? नहीं, यानी बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी के बीच के जो डिफरेंस हैं वो बहुत कम होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. हम लोग डिफरेंस निकालते हैं पहले दिल्ली का. 1 जून में जो टेम्परेचर था वो और 1 दिसंबर में जो टेम्परेचर था वो, उनको हम माइनस करेंगे. तो दिल्ली में था 33 और 1 जून को और 23 1 दिसंबर को, माइनस करने पर 10 आया. उसी तरह अब हम शिमला का डिफरेंस निकालेंगे. 22 माइनस 10, करेक्ट, और हमारा आंसर आया. अब बेंगलोर का निकालेंगे. बेंगलोर में है 28 1 जून को और 24 1 दिसंबर को.
उसी तरह अब हम जैसलमेर का निकाल लेते हैं। जैसलमेर का टेम्परेचर 1 जून को था 38 और 1 दिसंबर को 25। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये उनके बीच का डिफरेंस दिल्ली में दोनों चार्ट के जो टेम्परेचर है उनमें डिफरेंस आ रहा है 10, शिमला में 12, बेंगलोर में 4 और जैसलमेर में 13। वो कौन सी सिटी है जो सबसे कम डिफरेंस बताती है? जैसे दिल्ली का 10, शिमला का 12, बेंगलोर का 4 और जैसलमेर का 13। आपको इन सबके आंसर्स को देखना है। सबसे लीस्ट जो आ रहा है वो यहां आ रहा है बेंगलोर। बेंगलोर एक ऐसी सिटी है जो सबसे कम टेम्परेचर डिफरेंस बताती है। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, वो कौन सी सिटी है जो कब से कम फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर बताती है, वो है बेंगलोर। अंडरस्टूड? विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। यहां पर अर्लियर देयर वर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। पहले ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स थे ही नहीं। रैबिट्स वर ब्रॉट इन टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780। इस साल रैबिट्स को खरीद कर लाया गया ऑस्ट्रेलिया में, ताकि ऑस्ट्रेलिया में भी रैबिट्स हों और बहुत सारे एनिमल्स जिस तरीके से होते हैं वहां रैबिट भी हों। At that time there were no animals in Australia which ate rabbit. तब उस वक्त कोई ऐसा एनिमल नहीं था ऑस्ट्रेलिया में जो रैबिट को शिकार करके खा जाता। इसीलिए द नंबर्स ऑफ रैबिट्स बिगेन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट। तो कोई उनका शिकार नहीं करता था, कोई भी एनिमल उसको खाता नहीं था, इसीलिए नंबर्स ऑफ रैबिट बढ़ते चले गए। इमेजिन व्हाट दे डिड टू द क्रॉप्स। और इसी चक्कर में ऑस्ट्रेलिया के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने लगे वो लोग, क्योंकि उनके नंबर्स बहुत इंक्रीज हो गए थे। तो इस चार्ट में उनका नंबर्स दिया गया है कि जब लाए गए थे तब 10 थे, फर्स्ट ईयर यानी एक साल कंप्लीट हुआ तो 18 हो गए, सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ तो 32 हो गए, थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ तो 58 हो गए, फोर्थ ईयर कंप्लीट हुआ तो 105 हो गए। अब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 10 से अगर हम डबल करें, इसने पहला क्वेश्चन बोला है आफ्टर ईच ईयर द नंबर्स ऑफ रैबिट्स वर अ लिटिल लेस देन डबल। तो डबल का क्वेश्चन हमें बार बार पूछा जा रहा है, इसी डबल डबल डबल। सो अगर सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में अगर फर्स्ट ईयर में लाए हुए से डबल होता तो 10 का डबल कितना होता है? 20। लेकिन ये 20 नहीं है, ये 20 से थोड़ा कम है, 18 है ना। अगर नेक्स्ट ईयर में 18 का डबल हुआ होता तो 26 होता, 36 होता, लेकिन ये 36 से थोड़ा कम है, 32। उसके बाद थर्ड ईयर में अगर वो और डबल हुआ होता तो 32 का डबल होता 64, लेकिन ये 64 से अ लिटिल लेस है। और अगर फोर्थ ईयर में 58 का डबल होता तो कितना होता? करेक्ट, 116, राइट। लेकिन ये 116 से थोड़ा कम है। यानी हर साल डबल तो हुआ है लेकिन कंप्लीट डबल नहीं हुआ, डबल से थोड़ा कम हुआ है। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आफ्टर ईच ईयर द नंबर्स ऑफ रैबिट्स वर अ लिटिल लेस देन द डबल, यानी थोड़े से कम डबल से, या डबल द नंबर। बी ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं कंप्लीट डबल ही हो रहे हैं, तो हमने अभी अभी नोटिस किया कि नहीं कंप्लीट डबल तो नहीं हो रहे, डबल से थोड़े कम हो रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 8 मोर, सिर्फ 8 ज्यादा था थोड़ी हो रहे हैं, कंप्लीट डबल हो रहे हैं। और मोर देन द डबल, या डबल से भी ज्यादा हो रहे हैं, नहीं, हमने नोटिस किया कि वो डबल से थोड़ा कम, यानी हमारा करेक्ट आंसर यहां आएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ 6 years द नंबर्स ऑफ रैबिट वर क्लोज टू विच नंबर? 400, 600 या 800? तो एट द एंड ऑफ 6 year, तो ये एंड ऑफ 5 year में हम डबल कर लेते हैं, हम हमारे इसको अप्रोक्सीमेट डबल ही करेंगे। ओके, सो 105 का डबल होता है 210, और एट द एंड ऑफ 6 year 210 का डबल होता है 420। सो एट द एंड ऑफ 6 year हमारा फिगर किसके बहुत करीब है? 420 किसके बहुत नजदीक है? यानी वेरी क्लोज टू 400, 600 या 800? करेक्ट, हमारा आंसर आएगा 400। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट विल क्रॉस 1000? सो चलो अभी तो ये क्रॉस नहीं किया हुआ, 6 ईयर के बाद में एट द एंड ऑफ, अगर हम लोग 7 ईयर यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं कि अगर 7 ईयर में 420 का डबल हुआ होता तो डबल कितना होता? 420 का डबल 840 होता।
और अगर 8th ईयर में हम जाते तो 840 का डबल कितना हुआ होता? 1680। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन से साल के बाद, आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट्स क्रॉसेस 1000। कौन से साल के बाद वो 1000 क्रॉस कर गया है? करेक्ट, 1000 क्रॉस हो गया ना। यहाँ पे 1000 क्रॉस हो जाने का मतलब होता है 1000 से भी ज्यादा हो जाना। तो वो कब होते हैं? एट द 8th ईयर। आफ्टर 8 ईयर्स हमारा आंसर हम इस तरीके से लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, so there are many questions but students I have explained few. I hope students you have understood. Thank you for watching the video, and this was a recapitulation. If you want to go through the detailed explanation, under this video there is one description box. Open the description box, you will get the playlist of chapter 12's videos. All videos are there which I had explained detailed. Okay, you may go through it in the detailed explanation. Thank you once again. Have a nice day ahead. Goodbye.